लेकिन उधर जाना नहीं है आपको, उधर बिल्कुल नहीं जाना, कोई नहीं जाता उधर, जाएंगे तो परेशानी होगी। आप लोग सीधा मस्जिद कुबा जाए, जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ के जल्द वापस आए। जितनी जल्दी आप लोग आएंगे उतनी जल्दी यहाँ से फिर बस अगली जगह के लिए जाएगी। रुक तुम्हारा भी लेता हूँ। आप हमारे काफिले में है। 7658 गाड़ी है आपकी। मस्जिद के सामने। हाँ बाजू लेके जाओ। अगली ज़ियारत शुहदा वफ़द है, जहाँ पर जंग उहद पेश आई थी। जंग उहद इस्लाम की दूसरी जंग है। पहली जंग जंग बदर जो सन 2 हिजरी में पेश आई, उसके 1 साल बाद सन 3 हिजरी में जंग उहद पेश आई। जंग बदर में कुफार मुशरिकीन की तादाद पूरे तौर पर 1000 थी, जबकि सहाबा किराम की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी। जंग बदर में कुफार मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई थी, बुरी तरह वो हारे थे। उनके 70 लोग मारे गए थे और 70 लोगों को कैद करके मदीना लाया गया था। ऊपर से जो माली गनीमत की शक्ल में मुसलमानों के हाथ आया वो अलग नुकसान था कुफार का। तो जंग बदर में जो उनका नुकसान हुआ, जो खसारा हुआ, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी का इंतकाम लेने के लिए, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे 1 साल तक तैयारी की। और जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो 3000 फौज ले करके पूरे आनोबान शान शौकत के साथ मदीना की तरफ चल पड़े और उहद के मैदान में आकर के खीमा जन हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने सहाबा किराम के साथ मशवरा किया। मशवरा करने के बाद 1000 सहाबा किराम या 1000 फौज लेकर के मदीने से निकले। जब आधे रास्ते आए तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने ये कहा करके कि अल्लाह के रसूल ने हमारी बात नहीं मानी थी, हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया था। 1/3 फौज तकरीबन 300 लोगों को लेकर के अलग हो गया और कहा कि हम अपने आप को हलाक करने नहीं जाएंगे, हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात पर अमल नहीं किया था। बाकी 700 लोगों को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में पहुंचे और जंगी एतबार से, जंगी हैसियत से जो सबसे बेहतरीन जगह होती है उसी जगह का आपने इंतखाब किया और वो जगह थी जबल रोमात, तीरंदाजों के पहाड़ के बाजू में।
اتنی بات سمجھ کے رکھے تو پوری جنگ آپ سمجھ جائیں گے. شہدائے احد کے میدان میں زیارت کی کچھ جگہ ہیں. سب سے پہلی جگہ جبل احد پہاڑ. احد پہاڑ بہت مشہور اور معروف پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو پسند کرتے تھے اور یہ پہاڑ بھی آپ کو پسند کرتا تھا. آپ نے فرمایا هذا جبل يحبنا ونحبه. یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جسے ہم چاہتے ہیں اور یہ پہاڑ ہمیں چاہتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. احد پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا, ہلنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. احد پہاڑ تم ٹھہر جاؤ, تمہارے اوپر ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صدیق اکبر پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے ہوئے ہیں, لہٰذا تم رک جاؤ. تو وہ پہاڑ ٹھہر گیا اور رک گیا. تو ایک معجزہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت ظاہر کیا گیا تھا. یہ کسی عام انسان یا بڑے سے بڑا بزرگ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ پہاڑ سے بات کر سکے اور وہ پہاڑ اس سے بات کر سکے, اس کی بات کو سن سکے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ پہاڑ کو سنی تو یہ معجزہ تھا جو اس وقت آپ کے ہاتھ پر ظاہر کیا گیا. وہ پہاڑ جہاں بہت مشہور ہے, اس پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے. اس پہاڑ کی لمبائی کہا جاتا ہے کہ 7 سے 8 کلومیٹر, یعنی 7 سے 8 کلومیٹر دوری تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی چوڑائی 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے. ہم کچھ ہی دیر میں جنگ احد پہنچیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد احد پہاڑ آپ کو بائیں ہاتھ پر دکھے گا. عرب کی جگہ وہاں پر جبل رمات ہے, تیر اندازوں کا پہاڑ. اسی جگہ پر آپ خیمہ زن ہوئے تھے صحابہ کرام کو لے کر کے. اسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا. تو جبل رمات تیر اندازوں کا پہاڑ یہ بہت ہی اہم پہاڑ ہے. اس پہاڑ کا نام جنگ سے پہلے جبل عینین تھا اور جنگ کے بعد پھر اس کا نام جبل رمات پڑا. جنگ سے پہلے آپ نے 50 صحابہ کرام کو اس پہاڑ پر متعین کیا جن کے اندر تیر اندازی کی, تیر چلانے کی بہت زیادہ مہارت تھی. اور ان میں ایک آدمی کو امیر بنا دیا, حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے. آپ نے ان سے کہا کہ اس جنگ میں اس پہاڑ کی بہت اہمیت ہے, تم لوگوں کو یہاں رکھا گیا ہے تاکہ تم شروع جنگ سے لے کر کے آخری جنگ تک اسی پہاڑ پر برقرار رہو. پیچھے سے دشمن کی فوج اس پہاڑ سے قریب ہوتی ہے تو تیر چلا کر ان کو دور ہی رکھنا تاکہ اس پہاڑ پر کنٹرول نہ کر سکے. خدشہ ہے اگر وہ اس پہاڑ پر کنٹرول کر لیں تو پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کریں گے, وار کریں گے, پھر ہم سنبھل نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو, ہم جنگ جیتے یا ہارے, ہم ایک ایک کر کے سب شہید ہو جائیں, لیکن تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا. جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک تم کو یہاں سے نہیں نکلنا ہے, نہیں جانا ہے. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. جنگ کا جو پہلا مرحلہ تھا, شروعاتی دور تھا, صحابہ کرام کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا اور بہت ہی اچھا تھا. صحابہ کرام جس بہادری کے ساتھ کفار سے مقابلہ کر رہے تھے, کفار مشرکین کے کچھ لوگ شروع ہی میں قتل کر دیے گئے اور ان کے اندر خوف و دہشت طاری ہو گیا. بہت سارے لوگ ان کے جنگ کا میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے. بالکل وہی ٹائم تھا کہ صحابہ کرام مال غنیمت لینے میں مشغول ہو گئے.
इधर जबल रुबात के ऊपर जो 50 सहाबा किराम थे वो नीचे का पूरा मंजर देख रहे थे। वो देख रहे थे कि हमारे साथी लोग माल गनीमत ले रहे हैं, अगर हम नीचे ना उतरे तो हो सकता है हमें माल गनीमत ना मिले। एक काम करके 40 सहाबा किराम नीचे उतर गए, सिर्फ 10 सहाबा किराम ऊपर बचे। पीछे से खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, पूरी एक जमात और एक ग्रुप को लेकर के करीब हुए और पीछे से उस पहाड़ी पर हमला करके तीर चला करके 10 सहाबा किराम को शहीद कर दिया। इन 10 सहाबा किराम ने भी उनका मुकाबला किया, लेकिन एक पूरी फौज पूरी जमात के सामने कब तक टिक सकते थे। 10 सहाबा किराम शहीद हो गए और उन्होंने उस पहाड़ पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अचानक पीछे से मुसलमानों पर वार किया, हमला किया। जैसे ही उन्होंने पीछे से हमला किया, इन्होंने आवाज दी, आगे इनकी फौज जो जंग का मैदान छोड़ करके भाग रही थी उनको भी आवाज दी, वो पीछे की तरफ मुड़ करके आए और उन्होंने आगे की तरफ से हमला शुरू किया। इस दो तरफा हमला की वजह से मुसलमानों के अंदर इंतशार फैल गया, ये इधर उधर हो गए। बाद में ऐसा वक्त भी आया कि ये अपने दूसरे साथी को भी पहचान नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर शहादत का सिलसिला शुरू हुआ। 70 सहाबा किराम इस जंग के अंदर शहीद हुए। सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग के अंदर शहीद हुए और जिनका मुसला किया गया और इस मुसले की वजह से नाक कान काट ली गई थी। जिंदा ने उनका सीना फाड़ कर कलीजा निकाल कर चबा डाली थी। तो ये दुर्गत देख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, आप रो पड़े थे। हजरत मुसाब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मदीने के पहले दाई थे और जिनकी शक्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, वो इस जंग के अंदर शहीद हो गए थे। हजरत हंज़ला अल-गसील रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग के अंदर शहीद हो गए थे। हजरत अमर बिन जमुह, हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश, हजरत अबू तलहा, हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग के अंदर शहीद हो गए थे। 70 सहाबा किराम इस जंग में शहीद हो गए थे। उन 70 सहाबा किराम को यहाँ दफनाया गया है, उनका कब्रिस्तान यहाँ पर है जिसका नाम शुहदाए उहुद है। तो असल ज़ियारत वही शुहदाए उहुद कब्रिस्तान की है, लेकिन जो शरीयत के अंदर तरीका बताया गया है उस तरीके के मुताबिक आपको ज़ियारत करनी होगी। सबसे पहले आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर दुआ पढ़ें, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। कब्रिस्तान ज़ियारत करने के दो अहम फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा कि आप शुहदाए उहुद के कब्रिस्तान के पास जाएं और वहाँ जाने के बाद उन सहाबा किराम के लिए दुआ करें जो वहाँ मदफून है, उनके हक में दुआ करें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनके खिदमत के बदले, उनकी कुर्बानी के बदले क़यामत के रोज़ सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाए, आमीन। तो सहाबा के हक में आप वहाँ जाकर के दुआ करें। कब्रिस्तान में जाकर के सहाबा किराम से कुछ तलब करना, सहाबा किराम से कुछ मांगना, अपने लिए कुछ उनसे मांगना या फिर वहाँ की मिट्टी से बरकत हासिल करना, मिट्टी उठाना या वहाँ दीवार पर हाथ मसल करके बरकत हासिल करना, ये चीज़ें दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इससे आप लोग बच करते रहें। जो ज़ियारत का तरीका है उसी के मुताबिक ज़ियारत करें। ज़ियारत का दूसरा फ़ायदा कि वहाँ जाकर के आप अपनी आखिरत को याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। हमने तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत से रोक दिया था शुरू में, लेकिन अभी तुम्हें इजाज़त है, तुम तो ज़ियारत कर सकते हो। ये नहर है, ये वादी है, असल वादी है, इसका नाम है वादी खनाब, वादी खनाब। तो शुहदाए उहुद के कब्रिस्तान के पास जाकर के आप अपनी आखिरत को याद करें, अपनी आखिरत के बारे में सोचें, अब आखिरत में आपके साथ क्या होने वाला है।
कब्रस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको, हमको, छोटे को, बड़े को, गरीब को, मालदार को, हर शख्स को मौत के बाद कब्र में जाना है। उसके बाद फिर मैदान महशर आएगा, क़यामत आएगी। एक बैग लेना नहीं है, तुमने नहीं दिए? नहीं लेडीज को। ऐसा की कर रहे थे, लेडीज में कहीं नहीं दे रहे थे। असल हमला देना चाहिए, बोला नहीं क्या तुम यार? उनको मालूम है सर, तुम ना दिए तो हम ना देते हैं, मालूम है उन्हें। हमें अलग कर बोलना। बोल का नहीं, दो लेडीज आएंगे को। हाँ नहीं दिया, पानी भी ये दिया, ब्रेड। रखती हूँ तुम्हें ज़ियारत करके। ये क्या है? ये कब्रिस्तान है। यहाँ देखिए हमें इधर जा रहे हैं अब। याद करो मैं। पहले बंदा रखो ही नहीं सकता बंद ले को बेटा है वजन होता पाँच किलो। मेरे रोमा पीर उस्मान या उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कुआं, तो कुआं है जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी से खरीद करके सहाबा किराम के लिए वक्फ कर दिया था। सहाबा किराम जब मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो यहाँ पानी पीने के लिए कुछ कुओं का बंदोबस्त था। उसमें बीरे गरस, बीरे सुखिया, बीरे आरिस, बीरे हाँ, इस तरह से बहुत सारे कुएँ थे। लेकिन मदीने के अंदर एक बड़ा कुआं था जिसका नाम था बीरे नुमा। वहाँ बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी निकलता था। वो कुआं एक यहूदी के कब्जे में था। पानी के लिए सहाबा किराम को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा, तरगीब दिलाते हुए कहा कि तुम में कौन ऐसा शख्स है जो इस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कठिन मौके पर अपनी जेब खास से उस कुएं को खरीद करके सहाबा किराम के लिए वक्फ कर दिया था। उसी कुएं का नाम बीरे उस्मान और बीरे रोमा है। कुआं अभी भी मौजूद है, बंद नहीं किया गया है, लेकिन बिल्कुल कुएं के करीब आप नहीं जा सकते। सिर्फ उसका एरिया देख सकते हैं। एरिया पूरा घेरा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि इसी एरिया पर, इसी जगह पर बीरे रोमा, बीरे उस्मान है। तो हम वहाँ से गुजरेंगे सिर्फ बस्ती से। उसके बाद एक बहुत बड़ा खजूर का बाग है जो बहुत ही मशहूर और मारूफ है, और यहाँ के लोग हजरत उस्मान गनी की तरफ उस बाग की निस्बत करते हैं। उस बागीचे में आप जाएंगे तो दरख्तों पर अभी खजूरें लगी हुई हैं, अजवा, कलमी, मरियम, इस तरह की खजूरें लगी हुई हैं। और उस वहाँ जाकर के आपको अंदाजा होगा कि लोग खजूरों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से दरख्तों का या खजूर का इंतजाम करते हैं। वहाँ जाकर के अंदाजा होगा। वहाँ पानी का चश्मा भी लोगों ने निकाल के रखा है, जिससे बागीचे की हुस्न दोबाला हो जाती है। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर हैं, समोसा, जूस, पानी, चाय वगैरह। किसी को क़ज़ाए हाजत, पेशाब वगैरह की ज़रूरत हो तो भी कर सकता
बागीचे के अंदर एक बहुत बड़ा खजूर का मार्केट भी है, जिस मार्केट के अंदर बहुत सारी खजूरें आपको मिलेंगी। अजवा भी है, अंबर भी है, सबा भी है, मगरूम है, बरनी है, कलमी है, बगैर गुटने वाली खजूरें हैं, सुपारी है, बहुत सारी खजूरें हैं। उसमें अच्छी अच्छी खजूरें भी हैं और मुनासिब कीमत पर भी मिलती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, खजूरें खरीदते हैं और अपने मनपसंद खजूरें खरीद कर ले करके जाते हैं। तो ये कोई मुकद्दस जगह नहीं है मेरे उस्मान से, ये कोई मुकद्दस या तारीखी मकामात में से नहीं है, ये टूरिस्ट एरिया के तौर पर है, टूरिस्ट एरिया के तौर पर है। सब हज्जाज कराम या मुअतमरीन जब ज़ियारत को आते हैं तो खजूर का बाग भी जाते हैं, खजूर के बाग की ज़ियारत भी करते हैं और उनकी ज़रूरत की चीज़ें खजूर वगैरह खरीद करके लेके जाते हैं। तो हम लोग उस बागीचे में जाएंगे, 20 मिनट वहाँ रुकेंगे। उस 20 मिनट के अंदर जो आपको ज़रूरियात हो वो ज़रूरियात आप पूरी करें। खजूरें लेना हो खजूरें लें, अंदर जा कर के खजूरें खा करके देखना हो, अच्छी अच्छी खजूरें हैं जो अंदर बहुत सारी खजूरें हैं, खा करके देखें, घूम डाल करके आ जाएंगे। और बागीचे से तो 2-4-5 किलो खजूरें लेकर के ही जाना चाहिए। आप तो जाएंगे तो बहुत सारी खजूरें लेकर के जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अगर हो सके तो यहाँ से भी लेके जाइए ताकि अपने साथियों को खिला सके, दिखा सके कि हम मदीने के बाद देखने के लिए गए थे, वहाँ से भी हम कुछ खजूरें लेकर के आए हैं। लेकिन खजूरें लेने पर आप पर कोई जोर जबरदस्ती किसी की तरफ से नहीं होगी। बाएं तरफ देखें, बाएं तरफ नजर दौड़ाएं, ये देखिए एक बाग शुरू हो रहा है बाएं जानिब लेफ्ट हैंड पे, इसी में है बीर रुमा बीर उस्मान। इसी बागीचे के अंदर, इसी घेराव के अंदर, बाएं तरफ इसी घेराव के अंदर बीर रुमा बीर उस्मान है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का वक्त हुआ जो उन्होंने सहाबाए कराम के लिए खरीद करके वक्फ कर दिया था। बहुत सारे सहाबाए कराम यहाँ आते थे, यहाँ से पानी ले करके जाते थे और इसी कुएं की वजह से इस पूरे एरिया का नाम है बीर उस्मान है। है बीर उस्मान है, बीर उस्मान डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है। और इस मोहल्ले का दूसरा नाम हय्युल शरीफ से कहा जाता है। पानी है, अभी भी पानी है, कुआं है, पानी निकलता है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप कहीं भी कोई कुआं हो ना तो उस पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ तो भी पानी के इस्तेमाल के अलग बंदोबस्त किया गया है। सऊदी अरब में पीने का पानी जो है पूरा सप्लाई है, सब सप्लाई पानी पीते हैं। वज़ू वगैरह या फिर गुस्ल वगैरह के लिए या इस्तेमाल के लिए जो पानी होते हैं वो सरकारी निज़ाम और सिस्टम के तहत घर घर पहुँचता है। आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। तो खजूर फलने के लिए पकने तक और बरक से उतारने तक उसकी खिदमत करनी पड़ती है। ये देखिए कट्टा भी डाले और प्लास्टिक कैरी बैग नीचे नहीं पड़ना करके पके जो खजूर प्याज चल के प्याज के हमारे भी अलग से, जैसा कि मैंने कहा कि 3 मस्जिदें हैं जहाँ नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, यहाँ अलग से कोई ज्यादा सवाब तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, कभी मस्जिद जाएंगे, मस्जिद को देखेंगे, दोनों का मस्जिद में पढ़ लेंगे तो आप पढ़ के आ सकते हैं।
10 से 15 मिनट टाइम रहेगा। 15 मिनट, उसी 15 मिनट के अंदर आ सकते हैं। ख़वातीन के लिए अलग जगह है, मर्दों के लिए अलग जगह है। अभी ज़्यादा भीड़ औरत को हेलो हाँ सिर्फ वो एरिया इलाका देख करके निकल जाएंगे। वो खंदक का एरिया भी है और फिलहाल उसका नाम सबा मसाजिद भी है। सबा मसाजिद का माना है 7 मस्जिदें। एक जमाने में वहाँ 7 मस्जिदें थी, इसी वजह से उसका नाम पड़ा सबा मसाजिद। फिलहाल 4 मस्जिदें हैं, पुरानी मस्जिदें। 3 मस्जिदों का वजूद नहीं है। ये 7 या 4 मस्जिदें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने जब वो मदीने के गवर्नर थे बनवाया था, तामीर करवाया था। एक तारीख के तौर पर या अलामत के तौर पर, ताकि बाद के लोग आए और उससे पहचान सकें कि ये खंदक का एरिया है, खंदक का इलाका। खंदक की जंग ये इस्लाम की 3री जंग है। जंग खंदक सन 5 में पेश आई। इसमें कुफ़ार मुशरिकीन की तादाद पूरे तौर पर 10,000 थी और सहाबा किराम की तादाद सिर्फ 3,000 थी। कुफ़ार मुशरिकीन अरब के मुख्तलिफ जगहों से, मक्का से, ताइफ से, नज्द से और मुख्तलिफ कबाइल के लोग मिल करके इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए एकजुट हो करके मदीने की तरफ सन 5 हिजरी शव्वाल के महीने में चल पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर हमला करने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए ये कुफ़ार मुशरिकीन मदीने की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो आपने सहाबा किराम के साथ मशवरा किया। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया था, अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ यानी फारस देश में जब जंग होती है, लड़ाई होती है, तो हम शहर के चारों ओर खंदक खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं और खंदक के अंदर रह करके हम दुश्मनों का मुकाबला किया करते हैं। इस तरह से हम जंग जीत जाते हैं। क्योंकि ये नई तरकीब, नई चाल, नया तरीका था, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद किया। आपने सहाबा करम से कहा कि हम सब खंदक खोद करके इस जंग में दुश्मनों का मुकाबला क्या करेंगे। चुनांचे 1000 सहाबा करम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया था। तो हम खंदक के इलाके पर पहुंच चुके हैं। सामने देखिए पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल सेला। जबल सेला, सेला पहाड़। देखिए बाएं तरफ, देखिए बाएं तरफ, देखिए पहाड़ के ऊपर मस्जिद, बिल्कुल किनारे में मस्जिद दिख रही है, लोग उठ रहे हैं ऊपर। वो मस्जिदुल फतह है, वो मस्जिदुल फतह है, फतह मस्जिद है। और बिल्कुल जमीन पर नीचे पत्थर की बनी हुई मस्जिद दिख रही है, वो पुरानी मस्जिद, मस्जिद सलमान फारसी है। ऊपर वाली मस्जिद मस्जिदुल फतह, नीचे वाली मस्जिद मस्जिद सलमान फारसी। और ये बड़ी सी मस्जिद सफेद कलर की, देखिए जामे खंदक नाम लिखा हुआ है, 1428 में बनी है, यानी आज से 16 साल पहले। तो ये नए ज़माने की मस्जिद है। इसी मस्जिद में जुमा नमाज, तरावी वगैरह होती है। इन छोटी मस्जिदों में नमाज नहीं होती है। इस पहाड़ का नाम मैंने बताया जबल सेला, सेला पहाड़। जब भी इस जंग के बारे में बात आएगी, कहीं भी किसी जगह में, इस पहाड़ का नाम जरूर आएगा। आपके दाएं तरफ जो ग्राउंड दिख रहा है, मैदान घेरा हुआ है, यही जंग का मैदान था। पूरे सहाबा किराम थे, उनकी तादाद 3000 थी।
दाएं हाथ पर देखिए, दाएं हाथ पर एक मस्जिद दिख रही है, मस्जिद उमर बिन खत्ताब। दाएं हाथ पर मस्जिद उमर बिन खत्ताब। फिर बाएं हाथ पर पहाड़ के ऊपर देखिए जीना लगा हुआ है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद फातिमा या मस्जिद आली। मस्जिद फातिमा या मस्जिद आली। तो 4 पुरानी मस्जिदें आपने देख ली, मस्जिद फत, मस्जिद सलमान फारसी, मस्जिद उमर बिन खत्ताब और मस्जिद आली या मस्जिद फातिमा। ये 4 मस्जिदें। देखिए हम अभी जिस रोड पर हैं, अभी जिस रोड पर आप चल रहे हैं या खड़े हैं, इसी रोड के बाएं तरफ जहाँ पे रोड खत्म हो रहा है, इधर ही खंडक खोदी गई थी। इसी रोड के बाजू में आपके बाएं तरफ लास्ट में खंडक खोदी गई थी, बहुत दूर तक, जहाँ तक जगह खाली थी, चारों तरफ पहाड़ था, 3 तरफ, इधर ये हिस्सा खाली था, तो इधर ही खंडक खोदी गई थी। और खंडक के उस पार यानी बाएं तरफ उधर कुफार मुशरिकीन थे जिनकी ताकत 10,000 थी। ये बाएं तरफ जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये इधर ही आकर के कुफार मुशरिकीन खेमा जंगल गए थे और बीच में खंडक थी। और दाएं तरफ जो छोटा ग्राउंड दिख रहा है, इधर साहबा किराम थे। तो इस जंग के अंदर कोई घमसान की लड़ाई नहीं हुई है, यानी आमने सामने अंदर घुस करके जो जिसको पाए मारे ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए कि बीच में खंडक थी। कुफार मुशरिकीन में से जो कोई भी जबरदस्ती खंडक पार करके आने की कोशिश की, तो सहाबा किराम ने आगे बढ़ करके उनका मुकाबला किया और उनको मार गिराया। इस तरह से 10 कुफार मुशरिकीन इस जंग के अंदर मारे गए थे और 6 सहाबा किराम इस जंग के अंदर शहीद हो गए थे। मशहूर सहाबी हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस जंग के अंदर जख्मी हो गए थे और एक रग कट गई थी उनकी, और उसी से खून बहते बहते उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया था। आज की हमारी ज़ियारत खत्म हो गई। आज हमने जिन जगहों की ज़ियारत की, मस्जिद कुबा, शहादाए उहुद के अंदर कब्रस्तान, शहादा का कब्रस्तान, जबल रोमात जिसका पुराना नाम जबल आइनैन था, और वहीं पे वादी खनात भी है, उहुद का मैदान, जबल उहुद, जबल रोमात, ये सब जगह आपने देखी। पीर उस्मान, खुजूरबाद, मस्जिद कुबला और खंदक। मैं आपके साथ सुबह से लेकर अब तक जहाँ तक हो सका रहा और खिदमत करता रहा जहाँ तक हो सका। अल्लाह ताला आपको और हमें इसका क़यामत के रोज़ बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह मैं करूँगा। घर है इंडिया झारखंड। इंडिया में झारखंड स्टेट है और झारखंड के अंदर पाकुड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, पाकुड़। तो पाकुड़ में मेरा घर है।